Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Joginder Rohila and today in this video I am going to discuss with you about crystal field splitting in tetrahedral complexes. In my last video I have discussed with you about calculation of CFSE in case of octahedral complexes कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी, इस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट इज़ सराउंडेड बाय 4 लिगेंड्स. ओके, these 4 ligands are arranged in such a way with the metal ion that they make an angle of 109 degree 28 minute, and they occupy out of 8 corners of the cube. Out of 8 corners they occupy 4 corners. In such a way they are making an angle of 109 degree. And remember, no ligand of tetrahedral structure is approaching to the metal ion at principal axis, whether that is x axis, y axis and z axis. कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 4 लिगेंड्स में से कोई भी लिगेंड प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू मेटल को अप्रोच नहीं करता. x axis, y axis and z axis, these point towards the metal ion, towards the centers of faces of the cube. See, this x axis, y axis and z axis, these are pointing at the centers of the face of the cube, and ligands are present at these points, making an angle of 109 degree 28 minute. And in case of tetrahedral complexes, what is important? No set of orbitals, whether we discuss about dx square minus y square and dz square and other set of orbitals like dxy, dyz and dxz, no set of orbitals is in direct interaction with the ligands. कि d ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिटल्स में से जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, d ऑर्बिटल्स की शेप्स को हमने डिस्कस किया था कि 5 ऑर्बिटल्स जिन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, उनमें से 3 ऑर्बिटल्स का बिहेवियर एक जैसा है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है, और 2 ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स, उन ऑर्बिटल्स का बिहेवियर एक जैसा है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करती है. अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है कि कोई भी इंटरेक्शन लिगेंड्स के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है. इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है. वन इंटरेक्शन इज एट एन एंगल ऑफ अराउंड 54.7 डिग्री. This 54.7 degree, it means the angle of interaction of those orbitals which are having electron density on principal axis, like dx square minus y square and dz square, and we know that these 2 orbitals are having electron density on principal axis. Angle of interaction between these 2 orbitals and the approaching ligands, the angle of interaction is half of angle of tetrahedral, 109 degree 28 minute. It means it is around 54.7 degree. So one angle of interaction is 54.7 degree, and another angle of interaction means the 3 orbitals dxy, dyz and dxz, we say those 3 orbitals, T2 set of orbitals, the angle of interaction between T2 set of orbitals and approaching ligands is around 35 degree. That is around 35 degree. It means the angle of interaction is lesser in case of T2 sets, those orbitals which are having electron density in between the principal axis. And if lesser is the angle, greater will be the interaction. If greater will be the interaction, more will be the repulsion. More will be the repulsion, greater will be the range of the energy. It means out of 2 sets of orbitals, this set which is having dxy, dyz and dxz, this set of orbitals face more interaction with the ligands, and there will be greater increase of energy for this set of orbitals. So this is destabilized in comparison to other
set of orbitals, which is E set of orbitals, because it is facing lesser interaction with the ligands. That interaction is through an angle of 54.7 degree, but for this set of orbitals that interaction is through angle of around 35 degree. So if average energy of the system remains same and we assign this crystal field splitting gap as 1 delta T, this set of orbitals containing two orbitals that will be stabilized by the factor of minus 0.6 delta T, because that will be stabilized by the factor of 3 by 5 of the orbitals, 3 by 5, and this set of orbitals containing three orbitals will be destabilized by the factor of plus 0.4, 2 by 5, because if average energy remains the same, the decrease in energy for these two orbitals will be exactly equal to the increase in energy for these three orbitals, so that average energy of the system remains same. Okay, this is crystal field splitting in case of tetrahedral complexes. We need to assign the value 1 delta T, and we cannot assign 1 delta T equal to 10 dq, which was डिस्कस्ड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में हमने क्या किया था कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो गैप था 1 डेल्टा ओ को हमने 10 DQ भी असाइन किया था. लेकिन ये आपने याद रखना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस करेंगे तो 1 डेल्टा टी को हम 10 DQ असाइन नहीं कर सकते. ऐसा क्यों कर सकते हैं, ऐसा हम क्यों करते हैं? एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ऑलवेज लेस देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम क्यों है? इसके लिए क्या रीजन है? वन रीजन इज इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर आर 4 लिगेंड्स एंड इन केस ऑफ octahedral complexes there are 6 ligands. So the ratio of splitting of tetrahedral to octahedral comes out to be 2 by 3. That comes out to be 2 by 3 because 4 ligands are there for tetrahedral and 6 ligands are there for octahedral, and this ratio comes out to be 2 by 3. One factor is 2 by 3 and other factor is again 2 by 3. That is due to the अनअवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन. जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में किया है कि एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में कि जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन थी लिगेंड्स के साथ. T2G सेट्स को हमने डिस्कस किया था, EG सेट्स को हमने डिस्कस किया था जिसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन थी, उनकी एनर्जी हायर हुई थी. बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में कोई भी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऐसा नहीं है जिस केस में लिगेंड्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो. तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब कोई भी इंटरेक्शन है वो किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल के थ्रू है, चाहे वो 54.7 डिग्री का एंगल है या 35 डिग्री का एंगल है. तो वो जो फैक्टर है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के लिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, वो फैक्टर भी 2/3 फैक्टर है. तो दोनों फैक्टर्स को अगर हम मिलाएं 2/3 एंड 2/3 दैट कम्स आउट टू बी 4/9. सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ crystal field splitting of tetrahedral complexes, delta T is 4/9 of delta O, or you can also write 4/9 multiplied, what is the value of 1 delta O? 1 delta O is equal to 10 dq. 10 dq. That can be written as 4.45 dq. So in case of crystal field splitting gap of tetrahedral complexes, either you say this is 1 delta T or you will say that is equal to 4.45 dq. And if an electron is present in E set of orbitals, lower energy level, either that is stabilized by the factor of minus 0.6 delta T, or if an electron is present in T2 set of orbitals in upper energy level, that will be destabilized by the factor of plus 0.4 delta T. And if you want to calculate the stabilization or destabilization factor in terms of dq, then you will multiply this stabilization factor in terms of delta T with 4.45 dq. If an electron is present in E set of orbitals in lower energy level, you will say minus 0.6 delta T multiplied 4.45 dq, because 1 delta T is equal to 4.45 dq, and it comes out to be minus 2.67 dq.
and if an electron is present in upper level, then you will say plus 0.4 delta T will be multiplied by the factor of 4.45 dq, because 1 delta T is equal to 4.45 dq, then it comes out to be 1.78 dq. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि कुछ एक बुक्स में ये एरर्स हैं। जब हम CFSC को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उन केसेस में DQ की टर्म्स में कैलकुलेशन में कुछ एरर्स हैं। तो जब भी आप DQ की टर्म्स में CFSC को कैलकुलेट करें, सबसे बेस्ट मेथड है आप डेल्टा T की टर्म्स में कैलकुलेट कीजिए, उसको बाद में जो भी आंसर्स आपका आएगा उसको DQ की टर्म्स में कन्वर्ट कीजिए 4.45 DQ से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन हम इसकी कैसे करेंगे। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के रिगार्डिंग। व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, कि टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्यों हैं, चाहे उनमें वीक फील्ड लिगेंड्स अटैच हों या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अटैच हों। बिकॉज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ऑलवेज लेस, एंड दैट इज ऑलवेज लेस इफ वी कंपेयर विद द पेयरिंग एनर्जी। कि अगर हम पेयरिंग एनर्जी के साथ कंपैरिजन करें, पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग गैप हमेशा ही कम होगा। तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड्स अटैच होंगे या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अटैच होंगे, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स हो तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेफर टू गो टू हायर एनर्जी लेवल इफ देयर इज ऑप्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप एट द लोअर एनर्जी लेवल और टू गो टू एट हायर एनर्जी लेवल। The electron will prefer to go to higher energy level in comparison to pair up, because crystal field splitting gap is always less in case of tetrahedral complexes in comparison to pairing energy. So dear students, आप crystal field splitting tetrahedral complexes में डिस्कस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स और ऑर्बिटल्स का बिहेवियर नहीं समझेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का जो सेटअप है, जो पैरामीटर्स हैं, उसको समझने में प्रॉब्लम्स रहेगी। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूं आपके लिए कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या है। मेटल इज सराउंडेड बाय 4 लिगेंड्स एंड लिगेंड्स आर अप्रोचिंग टू मेटल आयंस। In case of metal ions, out of 5 orbitals, 3 orbitals are having electron density in between principal axis and 2 are having electron density on the principal axis. There is no direct interaction of orbitals with the ligands. One set of orbital makes an angle 54.7 degree and other set of orbitals make an angle of 35 डिग्री। सो जिस केस में एंगल ऑफ इंटरेक्शन कम है उस केस में ज़्यादा रिपल्सन होगी, वो T2 सेट के लिए है, और E सेट के लिए एंगल ऑफ रिपल्सन जो है वो ज़्यादा है, 54.7 डिग्री है। तो इसके अकॉर्डिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। और टेट्राहेड्रल का जब आप स्प्लिटिंग डायग्राम बनाएंगे, इसमें आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ट्रिपली डीजेनरेट जो T2 सेट हमने लिखा है, अगर आपको याद हो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने क्या किया था, जो ये T2 सेट था इसको हमने लोअर एनर्जी पे रखा था और उसको लिखा था T2G सेट, और जो ये E है जो डबली डीजेनरेट है इसको अपर लेवल पर रखा था और इसको लिखा था हमने EG सेट। हम G का यूज़ क्यों करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केसेस में? उन ज्योमेट्रीज में, उन कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, उस केस में आप G का यूज़ करेंगे। जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम G का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर ट्रिपली डीजेनरेट है वहाँ पर सिंपली T2 लिखेंगे, और जहाँ डबली डीजेनरेट है वहाँ पर सिंपली E लिखेंगे। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का पैरामीटर्स आपने समझना है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कि नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस लेंगे और उनकी CFSC को 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।